السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں ملک میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ وزیر حیدرآباد کے بنڈلہ گوڑہ میں GSI میں منعقدہ صفائی ہی سیوا پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے ہر شہری کو اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں غریبوں کے لیے بہتری لانے اور ملک کی ترقی کے لیے مسلسل محنت کر رہے اور ان کی زندگی سب کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں مختلف خدمت پروگرام منعقد کیے گئے اور وزیر نے GSI کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اہم معدنیات کی شناخت اور ان کے حصول میں GSI نمایاں خدمات انجام دے رہا۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ حیدرآباد اور تلنگانہ میں شدید بارش، متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے عوام سے پون کلیان کی خواہش۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید بارش کے دوران آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ و جنسینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شدید بارش سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے ایک بیان میں موسیٰ ندی کے بڑھتے پانی کے باعث MG بس اسٹینڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت پہلے ہی راحت اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ حکومت کی ہدایت اور موسمی مشوروں پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے تلنگانہ کے شاخ کو سیلاب متاثرین کی مدد فراہم کرنے، خدمت کے کاموں میں حصہ لینے اور ضرورت مندوں کو بنیادی اشیاء فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ BRS کی کارگزار صدر KT راما راؤ نے تلنگانہ کی آزادی اور عوامی تحریکوں میں اپنی سرگرم شرکت کے لیے مشہور رہنما کونڈا لکشمن باپو جی کو یاد کیا۔ کونڈا لکشمن باپو جی کی یوم پیدائش کے موقع پر KT راما راؤ نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کونڈا لکشمن باپو جی نے آزادی کی تحریک سے لے کر تلنگانہ تحریک تک مختلف عوامی جدوجہد میں ان کی بہادری اور قربانی کی مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد KCR کی قیادت میں TRS پارٹی نے ان کے نام پر یادگار قائم کی اور ٹینک بنڈ پر ان کا مجسمہ نصب کیا۔ ان کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کے نام پر ہارٹی کلچر یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ سری کونڈا لکشمن تلنگانہ ہارٹی کلچر یونیورسٹی نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو آفس ملگو میں بڑی شان و شوکت اور عقیدت کے ساتھ 27 ستمبر کو ایک ممتاز آزادی پسند ویژنری لیڈر اور تلنگانہ ریاست کی تحریک کے ایک ممتاز شخصیت کونڈا لکشمن باپو جی کا 110واں یوم پیدائش منایا۔ سابق MLC اور TJS کے صدر پروفیسر کودنڈا رام اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ ڈاکٹر سنگی سیٹی سرینواس اسسٹنٹ پروفیسر اور حوالہ لائبریرین گورنمنٹ ڈگری کالج ملکاجگری مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی سابق MLC پروفیسر M کودنڈا رام نے اپنی تقریر میں باپو جی کو ایک رہنما روشنی قرار دیا اور تلنگانہ ریاست کے حصول میں ان کے تعاون کو بے مثال قرار دیا۔ آدی سرینواس گورنمنٹ وپ نے کہا کہ بلدیاتی اداروں میں BCs کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کرنے والے GO کو جاری کرنے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ۔ اگرچہ BC بچہ نہیں تھا، راہل گاندھی کے لفظ کے لیے BC کو 42% ریزرویشن فراہم کیا گیا۔ اسمبلی میں BC کو تعلیم، نوکریوں اور سیاست میں 42% ریزرویشن دینے کا بل پاس کر کے مرکز کو بھیجا، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم نے بل کی منظوری کے لیے جنتر منتر پر دھرنا
धरना दिया। रेवंत रेड्डी BC के हामी के तौर पर जियो लेकर आए। हालांकि 2018 के पंचायती राज एक्ट में तरमीम करके उसे एक्ट बना दिया गया था। गवर्नर ने उसे मंजूर नहीं किया। बीजेपी लीडरों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने उनसे BC को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए इंतखाबात में जाने को कहा। हुकूमत ने एक जियो जारी किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం బీసీల పక్షాన నిలబడకుండా జంతర్ మంతర్ దగ్గర 2 మార్లు ఓసారి బీసీ సంఘాల పక్షాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన ముఖ్యమంత్రితో పాటు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలందరూ నిరసన వ్యక్తం చేసిన నోటి కాడికి వచ్చిన బుక్కను ఎత్తగొట్టకండి బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరినప్పటికీ GST काउंसिल की हालिया मीटिंग में जहां GST की शरहों में कमी के फैसले को हतमी शक्ल दी गई, वहीं रियासतों को होने वाले रेवेन्यू नुकसान के मद्दे पर कोई बात नहीं की गई। तेलंगाना और केरला ने खुलकर इस मामले को उजागर किया। दोनों रियासतों के वज़रा ने कहा है कि मरकज के फैसलों से रियासतों को शदीद माली खसारे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कौंसिल ने इस अहम पहलू पर कोई गौर नहीं किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और केरला के वज़ीर खजाना KN बालगोपाल ने दिल्ली में अंग्रेजी अखबार को एक प्रोग्राम में कहा कि मुनक़िदा कौंसिल मीटिंग के एजेंडे में वाज़ेह तौर पर मदावे का सवाल शामिल था, लेकिन कार्रवाई के दौरान उसे नजरअंदाज किया गया। वज़रा के मुताबिक 8 रियासतों ने मीटिंग से कबल दिल्ली में मुलाकात करके मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया था कि मरकज की शरह में कमी से रेवेन्यू पर पड़ने वाले असरात की तलाफी जरूरी। बाल गोपाल ने कहा कि एजेंडे में मदावे का मामला दर्ज था, मगर इस पर कोई बहस नहीं हुई। हमने अपनी तकरीरें की और तबसरे दिए, मगर GST के तहत मदावे के सवाल पर कोई बाज़ाब्ता गौर नहीं किया गया। रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत माजूरों की बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही। जिले ख्वातीन व अतफाल बहबूद और बुजुर्ग बहबूद के महकमों के ज़रिए तमाम संगारेड्डी कस्बे के ITI अहाते में जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 138 माजूर अफराद को सामान तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, TGIIC की चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी, जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और सामान तकसीम करने के प्रोग्राम का एहतमाम किया। 16 माजूर अफराद को बैटरी से चलने वाली साइकिलें, 36 माजूर अफराद को ट्राईसाइकिलें, 35 माजूरों को व्हील चेयर्स, 15 माजूरों को दरमियाने साइज की कुर्सियां, 15 अफराद को लार्ज साइज कुर्सियां, 11 माजूर अफराद को समात के आलात और 11 अफराद को वॉकिंग के साथ सुनने वाले आलात तकसीम किए गए। विजयवाड़ा में YS शर्मिला रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू RSS के हामी बन गए हैं। TTD फंड से दलित देहात में मंदिर बनाने को किसने कहा? कौन नहीं कहेगा कि TTD एक बहुत मुकद्दस मंदिर है? नहीं, अगर TTD के पास ज्यादा पैसा है तो दलित गाँव में बुनियादी सहूलियात फराहम करें, मंदिरों में नहीं। SC वेलफेयर हॉस्टल्स में 200 तलबा के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। इस रकम से उन बच्चों के लिए हॉस्टल में कम से कम सहूलियात फराहम करें। अगर दलित देहात में 5000 मंदिर बनाए जाए तो क्या वो दलित पुजारी मुकर्रर करेंगे? 5000 मंदिरों की तामीर के फैसले की कांग्रेस की सख्त मुखालिफत। हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब का संगम है, लेकिन चंद्रबाबू RSS के आइन को नाफिज करने की कोशिश कर रहे। कुमरम मासिफाबाद जिले इन्फोर्समेंट अफसरान राजकुमार और श्रीनिवास ने बताया कि अखवाद के खिलाफ सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सब्सिडी पर घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों को तिजारती तौर पर इस्तेमाल करने की मौसूल होने वाली शिकायत के पस मंजर में जिले इन्फोर्समेंट अफसरान ने कुमरम मासिफाबाद जिले के जन्नूर मंडल मुस्तकिल में वसी पैमाने पर मुआयना करते हुए कई होटलों में चेकिंग करते हुए तेलंगाना मील्स होटल, राहुल टी पॉइंट, अरविता फैमिली रेस्टोरेंट, चंदी ढाबा, पांडियावर चाय होटलों में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर से जब्त करते हुए मुतल्लिका होटलों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर ओहदेदारों ने कहा है कि मज़कूरा होटलों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आला हुकाम को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी कारकुनान को जीत का मंत्र दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में वाक़े गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जरिए मुनक़्क़दा इलाक़ाई कारकुनों की एक अहम मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मथुरा और
दीगर खित्तों के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट, MLAs, वुज़रा और तंजीम के अहम ओहदेदारों से बराह रास्त बातचीत की और आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात में जीत का मंत्र फराहम किया। कारकुनों से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तंजीमी ताकत ही किसी भी इंतखामी कामयाबी की कुलीद है। मरकजी वजारत दाखिला ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई हिस्सों को गैर अमन इलाके के तहत मुसल्लह अफवाज खसूसी इख्तियारात ज़ाब्ता AFSPA को 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया। वहीं गुज़िश्ता 2 साल से भी ज्यादा वक्त से बदअमनी के शिकार मणिपुर में मौजूदा कानूनी निज़ाम को देखते हुए FSPA को 13 पुलिस थानों के हल्के इख्तियार को छोड़कर पूरी रियासत में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। वजारत दाखिला की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक FSPA जिसके तहत किसी खसूसी रियासत या कुछ इलाकों को गैर अमन इलाका ऐलान किया जाता है, उनको नागालैंड के 9 जिलों और रियासत के 5 दीगर जिलों के 21 थाने हलकों में भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस कानून की तौसी अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप चांगलांग और लोंगडंग जिलों के अलावा आसाम की सरहद से करीब रियासत के नामसाई जिले के 3 थाना हलकों तक भी की गई। शुमाल मशरक के 3 रियासतों के इन खसूसी इलाकों में गैर अमन इलाके की तौसी अगले महीने 1 अक्टूबर से होगी और ये 6 महीने के लिए मुयस्सर रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों का आगाज करते हुए कहा है कि जब से रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है, रियासत में तरक्की की रफ्तार तेज हुई है और तेजी से तरक्की की राह पर गामज़न है। PM मोदी ने ओडिशा में बीजेपी हुकूमत बनने के बाद अपने छठे दौरे के दौरान झारसुगुड़ा में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि ओडिशा में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से रियासत ने तरक्की की रफ्तार पकड़ ली और कई तरक्याती मंसूबे जारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत का मकसद गरीबों की खिदमत करना और गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पसमानदा तबकात को मजबूत बनाना। जब गरीबों को पक्का घर मिलता है तो उनकी आने वाली नस्लें भी मुस्तहकम हो जाती हैं। अब तक मुल्क में 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं और ओडिशा में हजारों नए पक्के घरों की स्कीम जारी है। 30 साल के इंतजार के बाद शुरू होगी बेंगलोर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन सर्विस। कर्नाटक के अवाम की बेंगलोर और मुंबई को जोड़ने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन की 30 साल पुरानी ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने बेंगलोर जनूबी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के साथ हुई मुलाकात के बाद इसकी तस्दीक की। मुलाकात के बाद सूर्या ने कहा कि दहाइयों से लोग इन 2 बड़े मेट्रो शहरों के दरमियान एक तेज रेल राब्ते की मांग कर रहे थे। हिंदुस्तान ने रूस से 27 हिंदुस्तानी शहरियों को फौरन रिहा करने और वापस भेजने की अपील की। इन हिंदुस्तानियों को रूसी फौज में भर्ती किया गया था। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिंदुस्तान ने रूसी अफसरों से इस मामले को उठाया है। हिंदुस्तान ने फिर से इंतबाह किया है कि ऐसी नौकरी की तजवीज़ जानलेवा हो सकती है। ये जानकारी उन कुंभों से मिली है जिनके रुकन रूसी फौज में शामिल हुए। जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान ने रूसी अफसरों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि हमने मॉस्को में रूसी अफसरों और नई दिल्ली वाक़े रूसी सिफारत खाने के सामने इस मामले को उठाया और उन्हें हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द खिदमात से आज़ाद करने की गुजारिश की। जायसवाल ने कहा कि हम उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। रूस ने अप्रैल 2024 में कहा था कि उसने हिंदुस्तानी शहरियों की भर्ती बंद कर दी है। इसके बावजूद रूसी फौज में नौकरी के पुरकशिश ऑफर से हिंदुस्तानियों को लुभाने का सिलसिला जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की कि इसराइल गजा में जंग इस वक्त तक नहीं रोकेगा जब तक तमाम इसराइली यरगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि हमें गजा में अपना मिशन ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जंग हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई के साथ ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इसके मुल्क के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हमास की बाक़ियात गजा में मौजूद हैं। हम हमास की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हम गजा में जो कुछ कर रहे हैं इसको इस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि यरगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। इसराइली वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि हमास अब हथियार डाल दे और अपने हथियार वो यरगमालियों को हवाले कर दे। अगर तहरीक हमास इस पर राजी हो जाती है तो जंग अब बंद हो जाएगी। हमास के हथियार डालने के बाद इसराइल का गजा में सिक्योरिटी का किरदार होगा। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।